Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic that we are going to discuss is destructive and fractional distillation of coal. Okay, let's see why we are discussing this topic. As we know that coal is the source of organic compound and it is naturally present in our environment, okay, but this is further the source of many you can say hundreds of further useful organic compounds. So how we will get those useful organic compounds from coal? Yes, there are the two processes, that is destructive distillation and fractional distillation. Let's discuss the destructive distillation of coal first. When coal is heated in the absence of air and temperature ranging from 5000 to 10,000 degrees centigrade, it is converted into coke, coal gas and coal tar. Students, basically coal क्या है? कोल जिसको हम कोयला कहते हैं, ठीक है, बेसिक वर्ड्स में कोयला जो नेचुरली अकरिंग हमें एनवायरनमेंट में मिलेगा, ठीक है, कोयला, उसको फर्दर हम जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसकी जब करेंगे देन वी विल गेट कोक. कोक इज़ अगेन कोयला ही होता है बट दैट इज़ प्रोसेस्ड, ठीक है. इसको हम फर्दर कोक और कोल का डिफरेंस जो है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. बेसिकली कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, then we get three different types of products. One is the gaseous product, that is called coal gas, okay, and second one is the viscous liquid, that is called coal tar, and third one is solid materials, that is called coke. Okay, let's see. Coal gas mainly used as a fuel, okay, and coke is again the mainly carbon containing compound and it is also used as a reducing agent in the industries. And what about coal tar? ये viscous liquid further hundreds of organic compounds का source है and it will undergo fractional distillation to get all these useful organic compounds. Okay, कोल गैस को हम इसी तरीके से यूज़ कर लेंगे, कोक को भी हम इसी तरीके से यूज़ कर लेंगे जैसे उसको ऑब्टेन करेंगे, बट कोल तार इज़ फर्दर अंडरगो अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड it will give us hundreds of useful organic compounds. Okay, basically students, यहाँ पर coal and coke both are जिनको हम कहते हैं कोयला, ठीक है, दोनों ही कोयला की टाइप्स हैं, ठीक है, but what is the difference between them? See here, coal gas contains hydrogen gas, methane and carbon monoxide, and this is the you can say viscous liquid है जिसको हम कोल तार कह रहे हैं, and ये भी हमारे पास कोयले की एक टाइप है, ठीक है, बट यू कैन सी हेयर क्लियरली द डिफरेंस. ये किस किस्म का कोयला है, ठीक है, ये आपको थोड़ा और मतलब शाइनी ब्लैक लग रहा है. ये जो है ना कोक, तो ये आपको थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है बिकॉज ये प्रोसेस्ड हो चुका है, ठीक है, और उसमें से जो भी वोलेटाइल गैसेस थी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वो भी निकल चुके हैं, कोल तार का फ्रैक्शन भी निकल चुका है, एंड ये जो सिर्फ कार्बन कंटेंट्स हैं with very less volatile compounds are left behind. Okay, यहाँ पर हम देख लेते हैं difference between coal and coke. Coke, जैसे कि मैंने आपको बताया, that is naturally occurring substance and contains a large number of volatile elements. But when we process this coal and we get the coke that is prepared from coal, high carbon contents, very low volatile contents. अब volatile contents because process करने के बाद obviously वो remove हो चुके हैं, that's why we coke has a very less volatile contents, that's why it is suitable for
better fuel. This is the diagram for destructive distillation of coal. ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की एक कंडीशन जो हमने डिस्कस की है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज in the absence of air we will heat the coal at a very high temperature. तो ये हमारे पास लैब डेमोन्स्ट्रेशन है थोड़ी, कि लैब में हम लेबॉर्ट्री में हम किस तरह से उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, बट एक्चुअली दैट इज़ डन एट द इंडस्ट्रियल लेवल. ठीक है, यहाँ पर हमने कोल पाउडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, दैट इज़ बर्निंग विद अ हाई टेम्परेचर, एंड यहाँ से जो भी हमारे पास कोल गैसेस प्रोड्यूस होंगी दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर. ओके, यस, that are removed from here, and यहाँ पर हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो फर्दर फ्रैक्शंस जो है वो आ रही हैं, एंड दैट आर एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, एंड थिक हमारे पास विस्कस लिक्विड बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कोल तार. ओके, एंड व्हाट अबाउट कोक? जो भी रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड होगा ना, जो पीछे रह जाएगा, मीन्स कि जब कोल की हम बर्निंग कर लेंगे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, कोल गैस भी रिमूव हो जाएगी, कोल तार भी फर्दर बन जाएगा, जो पीछे रेजिड्यू रह जाएगा दैट इज कॉल्ड एज कोक. ओके, ओके, coal tar contains large number of organic compounds which separates out on fractional distillation. Okay, let's see what is fractional distillation. Separation of a liquid mixture into fractions differing in boiling points and chemical composition by means of distillation, typically using a fractionating column. बेसिकली कोल की जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसके लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया जाता है, बट हियर दिस इज़ द ऑपरेटर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है? इफ़ वी हैव two liquids of different boiling points and we will heat them. जब हम उनको हीट करेंगे तो जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा अकॉर्डिंग टू, जब हम टेम्परेचर देखेंगे थर्मामीटर में वो वाला टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, देन वो लिक्विड फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर्स और कंडेंसर से गुजरते हुए वो कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड देन इसको फर्दर हीट करेंगे एंड सेकेंड लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, देन कंडेंसर से होते हुए, ठीक है, वो सेकेंड फ्लास्क में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे. बेसिकली डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा दो लिक्विड्स में तो उनको हम बारी बारी वेपर्स में कन्वर्ट करके और कंडेंस करके अलग कर सकते हैं, बट कोल के लिए यही मेथड इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है. ठीक है, एंड वी गेट three different types of substances. First one acidic substances, second one natural substances, and third one basic substances. Okay, let's see कि हमारे पास acidic substances में क्या क्या है. That is phenol and cresol. ठीक है, अब आपको फिनोल और क्रिसोल की स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद क्या है कि यू शुड नो द स्ट्रक्चर दैट इज़ फर्दर इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स. फिनोल में जब हम मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिसोल. एंड नेचुरल सब्सटेंसेस में हमारे पास बेंजीन है जो हम कोल तार से हासिल करते हैं, टॉलिन है, देन हमारे पास नेफ्थलीन है, 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज हुए हुए हैं, and then anthracene, okay, and last one phenanthrene. phenanthrene और anthracene में आप देख लेंगे phenanthrene में 3 रिंग्स जो हैं वो एक लीनियर चेन में हैं, फ्यूज़ हुए हुए हैं, और इसमें लीनियर में फ्यूज़ नहीं है. ठीक है, एंड द लास्ट वन हमारे पास बेसिक सब्सटेंसेस हैं, दैट इज़ pyridine, 1 नाइट्रोजन भी अटैच है इसमें, और क्विनोलिन. ठीक है, 2 बेंजीन रिंग के साथ. ठीक है, you should know the difference between these two also.
एंड द लास्ट वन, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की पिक्चर दिखाई हुई है, दैट इज़ यूज्ड फॉर fractional distillation of coal on the basis of the difference in the boiling points of all these coal contents. ठीक है, ये कोल के कंटेंट्स हैं हमारे पास, कोल तार इसमें हम डालेंगे, ठीक है, और उससे ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है. एंड द लास्ट स्लाइड, देयर आर द एग्ज़ाम क्वेश्चंस. ये जो हमने स्लाइड्स में सब कुछ डिस्कस किया है, पेपर में मोस्टली ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, या फिर इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, what are the useful organic compounds that we get from destructive and fractional distillation of coal. ठीक है, तो उसमें हमें ऑब्वियसली बात है कि उनके नेम्स भी जो है वो मेंशन करने होंगे. कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल गैस, कोल तार एंड कोक हम गेट करते हैं, एंड कोल दार से ये तमाम जो है वो हम हासिल कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.